Hey guys, good evening. Welcome. My name is Nilesh and I welcome you to Nutrition Awareness Month, which is September. As you all know, we are celebrating this month as per the call given by our Honorable Prime Minister, Mr. Narendra Ji Modi, about creating, generating awareness about nutrition in the common man. And we have dived it into that opportunity. And as you all know, every single day, we are creating some new videos. So today, again, a very super short video because we are into micronutrients. So the videos are also micro videos, okay? Macronutrients, the videos were macro, micronutrients, the videos are also micro. And as you all know, this Nutrition Awareness Month has been powered by Herbalife Nutrition, the world's best nutrition company. So before going ahead, let me start sharing the screen with you. I have also prepared a fantastic presentation for you, wherein I'll be going into day number 7. In day number 7, we are into micronutrients. In micronutrients, we are discussing majorly different kinds of vitamins. We have already checked what are vitamins, why are they essential, and the types of vitamins. So in that types of vitamins, we are into fat soluble. So don't forget that we are discussing about fat soluble vitamins. So let us go deep dive into them. So there are 4 of them. 2 we have already discussed. So today is the 3rd, which is vitamin E. So lots of people called me and said, Nilesh, why are you saying vitamin? Call it as vitamin. So okay, fine. I am also doing that effort to call it as vitamin. So we are going to talk about vitamin E today. So I am very sure you are aware about vitamin E, which is also called as the beauty vitamin. Okay, why it is a beauty vitamin is simply because it is a antioxidant. Now you will say, Nilesh, antioxidant and beauty, how does this get connected? So to help you understand, let me help you what are antioxidants. And to understand antioxidants, we need to understand oxidants. So okay, fine. I'm going into English. So मैं हिंदी में भी बात करूँगा. So oxidation या oxidant समझने के लिए oxidation समझना पड़ेगा. और oxidation समझने के लिए मैं आपको एक बहुत ही simple उदाहरण देता हूँ. Just take an apple, उसको आधा काटिए और उसको हवा में खुला रखिए. You know what will happen? And I'm very sure you will agree with me that वो जो एप्पल का जो स्किन है अंदर वाला, वो थोड़ा सा ऑरेंजिश होता हुआ जाएगा और वो देखते देखते खराब हो जाएगा. इसका मतलब क्या हो रहा है? तो जब वो एप्पल प्रोटेक्टेड था, अभी जब मैंने उसको काटा है, तो ऑक्सीजन, हवा, जब उसके सरफेस के साथ जब इंटरेक्ट करने लगी, तो उसका सरफेस कलर चेंज हो गया. इसका मतलब उसके ऊपर ऑक्सीडेशन नाम का प्रोसेस चालू हो गया. अभी ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस अगर आपको रोकनी है, मतलब अगर आपको वो एप्पल को अच्छा रखना है, तो आई एम वेरी श्योर यू आर अवेयर अबाउट इट. एप्पल को काटिए और उसके ऊपर थोड़ा सा नींबू अप्लाई कीजिए. So नींबू is an antioxidant. So what will lemon और नींबू do is that ऑक्सीजन का और उसके सरफेस का जो कांटेक्ट हो रहा है या जो ऑक्सीडेशन नाम का प्रोसेस हो रहा है, उसे वो रोकेगा. Something similar happens inside our body. हम जो भी सांस ले रहे हैं, like we breathe in air. Now that air is not the purest form of air. उसमें बहुत ज्यादा poisonous gases है, pollution है, and there are a number of other stuff, dust and all those stuff. So हमारा lungs उसे पक्का filter करने का काम करता है. But something always gets passed on. और ये जो impure air है, ये हमारे सेल्स के साथ इंटरैक्ट करना चालू कर देती है और हमारे सेल के ऊपर वो काम करना चालू कर देती है. तो उसके वजह से क्या होता है, तो हमारे शरीर में भी या सेल्स के ऊपर ऑक्सीडेशन नाम का प्रोसेस चालू होता है और उसी लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए ना. हम जो खाना खाते हैं उसे हजम करने के लिए, उसे डाइजेस्ट करने के लिए शरीर को बहुत सारे केमिकल्स, जिसे हम एंजाइम्स कहते हैं, रिएक्शन करना पड़ता है. लाइक योर बॉडी विल सीक्रेट लॉट्स ऑफ फ्लूइड्स, एसिड्स इन योर बॉडी टू मेक श्योर दैट द फूड इज डाइजेस्टेड. तो ये डाइजेशन प्रोसेस का जो लेफ्ट ओवर रहता है उसे हम टॉक्सिन्स कहते हैं. अगर ये टॉक्सिन्स हमारे शरीर से बाहर नहीं निकलेंगे तो क्या होगा? आई एम वेरी श्योर यहाँ पे पिंपल्स आएंगे, देन स्किन थोड़ी सी टैन हो जाएगी या ऐसे ब्लैक कलर के पैचेस आएंगे, डार्क सर्कल्स आएंगे. इसका मतलब क्या होगा? तो आप अच्छा नहीं दिखोगे. सो
ये ना हो, इसीलिए हमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रोकने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स लेना पड़ेगा। और इसी का मतलब, अगर आपने विटामिन ई लिया तो आपने एंटीऑक्सीडेंट लिया। एंटीऑक्सीडेंट लिया तो यू विल प्रोटेक्ट योर सेल्स एंड यू विल प्रोटेक्ट नंबर ऑफ द ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन योर बॉडी। उसके वजह से टॉक्सिन्स रिलीज नहीं होंगे, और अगर टॉक्सिन्स रिलीज भी हो गए हैं, antioxidants will make sure that they are taking it out of the body, because of which your skin will start looking sharper. So I was just discussing you about एंटीऑक्सीडेंट। सो ये एंटीऑक्सीडेंट है, इसका मतलब ये एक ब्यूटी विटामिन भी है। अभी एंटीऑक्सीडेंट का मतलब हमने समझ लिया है। सो इसका काम है प्रोटेक्शन ऑफ सेल्स। ये हमारे पेशी को, टिश्यूज को, ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम पोल्यूशन, टॉक्सिन्स, हार्मफुल केमिकल्स, जो मैंने अभी आपको बताया। सो उसके वजह से क्या होता है, इफ आई टेक गुड विटामिन ई in my diet and all those stuff which I'm going to help you understand, it helps in reducing fine lines, जो wrinkles होते हैं, जो बारीक बारीक जो ये रेशा होता है जिसकी वजह से हम aged दिखते हैं। So it reduces in reducing that, and hence it also helps as an anti-aging agent. So आप ज्यादा old या ज्यादा aged नहीं दिखोगे if you have a very good source of vitamin E in your diet. So I helped you with this. Now, second, we will try to understand that it is needed to keep our immunity strong against viruses and bacteria, because it is an antioxidant, because an antioxidant protects cells and organs. Hence, ये आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाता है और आपको बाकी के वायरसेस से और इससे दूर रखता है। So, अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए तो उसके लिए विटामिन ई या विटामिन ई इज ऑल्सो वन ऑफ द ingredient which we should be consuming. तो इम्यूनिटी के बारे में मैंने आपको बताया। Then it is needed for formation of RBC. RBC का मतलब रेड ब्लड सेल्स। तो अभी रेड ब्लड सेल्स का क्या काम होता है ये भी हम थोड़ा सा देखेंगे। रेड ब्लड सेल्स का मेजर काम होता है जो भी ऑक्सीजन है वो पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट करने का। और ये ट्रांसपोर्ट कहां से होगा ऑक्सीजन, तो हमारे ब्लड में से ट्रांसपोर्ट होगा। सो रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन थ्रू आउट आवर बॉडी। तो अभी जस्ट इमेजिन देयर इज एन एयर पाइप, और मतलब पाइप है और उसमें हवा नहीं है, तो क्या होगा, ये पाइप ऐसे नीचे बैठ जाएगा, बट उसमें अगर ऑक्सीजन रहेगा तो ये ऐसा फुला हुआ रहेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? उसमें अगर एयर रहेगा तो ये फुला हुआ रहेगा। जस्ट टेक एन बलून, बलून में अगर हवा नहीं है तो ऐसा ये चिपक जाता है, लेकिन उसमें हवा भरेंगे तो वो ऐसा फुल जाएगा। Something similar happens with our blood arteries. So first of all, RBC carries oxygen throughout the body. उसके वजह से ऑक्सीजन कैरी करता है। सो विटामिन ई लोगे तो वो आरबीसी बनाएगा, आरबीसी ऑक्सीजन कैरी करेगा, ऑक्सीजन कैरी करेगा, इसलिए हमारे ब्लड वेसल्स वाइडन हो जाएंगे यानी फूलेंगे। और अगर फूलेंगे तो उसमें चोकेजेस, ब्लॉकेजेस होने के चांसेस नहीं है। इसीलिए ऐसा भी कहते हैं, जिसके लिए इतना बहुत प्रमाण नहीं है, बट इट इज कॉल्ड एज विटामिन ई लोगे तो आपको हार्ट डिजीजेस भी होने के चांसेस कम है। सो ओके, यू गॉट दिस। सो इट इज नीडेड बिकॉज इट इज ऑल इंटरकनेक्टेड। सो विटामिन ई लोगे तो आरबीसी बनेगा, आरबीसी बनेगा तो वो ऑक्सीजन कैरी करेगा। ऑक्सीजन अगर आपके ब्लड आर्टरीज में रहेंगे तो ब्लड आर्टरीज फुले हुई या वाइडन रहेंगी, और अगर वाइडन रहेंगी तो उसका चोकेज और ब्लॉकेज होने जिसका चांसेस। सो दैट इज द कनेक्शन। सो दैट इज हाउ आई टोल्ड यू अबाउट विटामिन ई। देन विटामिन ई ऑल्सो हेल्प्स विटामिन के को इस्तेमाल करना, मतलब हमारे बॉडी को जो विटामिन के मिलेगा जिसके बारे में हम कल बात करने वाले हैं, उसका उपयोग करने के लिए भी विटामिन ई की जरूरत होती है। तो जैसे रोटी के साथ सब्जी चाहिए, वैसे विटामिन के साथ विटामिन ई चाहिए। तो विटामिन के बारे में हम कल बात करेंगे। सो दे बोथ वर्क इन कंजंक्शन विद ईच अदर। एंड देन सो ये हुए उसके एडवांटेजेस, एंड द सेम आर द डिसएडवांटेजेस कि अगर आप विटामिन ई नहीं लोगे तो ब्लड वेसल्स क्लॉग होने के चांसेस है। अगर आप विटामिन ई नहीं लोगे तो विटामिन के का शरीर को फायदा नहीं होगा। तो विटामिन के को शरीर का फायदा नहीं होगा तो विटामिन के की वजह से जो डेफिशिएंसी होने वाली है वो हम कल बात करेंगे। विटामिन ई नहीं लोगे तो यू विल हैव अ वेरी लो इम्यूनिटी,
और अगर लो इम्यूनिटी है तो आपको बहुत ज्यादा ये जो अभी कोरोना का ये चल रहा है इफेक्ट होने के ज्यादा चांसेस है। एंड देन आप थोड़े से एजड भी दिखोगे। सो द जो एडवांटेजेस है एग्जैक्टली वही उसके नहीं लेंगे तो हम डिसएडवांटेजेस बन जाते हैं। सो लेट अस गो इनटू द सोर्सेज ऑफ इट। हमें ये विटामिन ई कहाँ से मिलेगा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें विटामिन ई वेजिटेबल ऑयल से मिलता है, और ज्यादा प्रमाण में ये हमें सनफ्लावर ऑयल में मिलता है, सोयाबीन के ऑयल में मिलता है, और कॉर्न के ऑयल में भी मिलता है। सो दीज आर द सोर्सेज इन ऑयल्स। देन ये हमें बहुत अच्छी प्रमाण में नट्स में मिलेगा, और मेजरली आलमंड्स में मिलेगा, पीनट्स में मिलेगा, और हेजलनट्स में मिलेगा। अभी हेजलनट इज नॉट एन इंडियन प्रोडक्ट, लेकिन आजकल अभी बहुत सारे शॉप्स में हमें हेजलनट भी मिलते हैं। So you can have hazelnuts also for good source of vitamin E. Then seeds में अगर बात करोगे तो because sunflower seeds में है और उसी से तेल बनेगा, तो but obviously sunflower seeds में भी बहुत ही अच्छा विटामिन E मिलेगा। मूविंग अहेड, ये हमें बहुत अच्छा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलता है, और ज्यादा करके स्पिनच, जिसे हम पालक भी कहते हैं, और ब्रोकली, उसमें भी हमें अच्छी मात्रा में विटामिन ई मिलेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको फ्रूट से चाहिए तो कीवी फ्रूट मिलता है, और मैंगो, द मैंगो हमारे सबका फेवरेट फ्रूट है। सो यू कैन ईट मैंगो ऑल्सो फॉर विटामिन ई। लेकिन जस्ट डोंट फॉरगेट द कनेक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट वर्सेस कैलोरीज। हमें कैलोरीज भी मैनेज करनी है, हमें न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। एंड दैट इज व्हाई एक्चुअली हर्बल लाइफ कम्स इनटू हेल्प, बिकॉज वो बहुत कम कैलोरीज में बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जिसके बारे में हम यही महीने में once we finish all this nutrients उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। So these are some of the sources of vitamin E. I hope you found them useful. So a very short video, because micro video, because micronutrients के बारे में बात कर रहे हैं। So I hope you have benefited with this video. I request you to सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बिकॉज हम ऐसे ही बहुत अच्छे इंफॉर्मेटिव, शॉर्ट, स्वीट, सिंपल लैंग्वेजेस में वीडियो आपके लिए ला रहे हैं और लाने वाले हैं। पास दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर नियर एंड डियर वन, सो दैट दे ऑल्सो गेट बेनिफिटेड। और ये छोटी इंफॉर्मेशन ही हमें नॉलेजेबल बनाती है। सो आई होप दैट यू विल प्लीज डू इट फॉर मी, बिकॉज I am on a mission to help 100,000 people to give you them basic knowledge about good health. So वो वजन कम करे ना करे, वो मतलब it is their lookout, but my job is to give you that knowledge. क्योंकि एक बार knowledge मिलेगा तो हम कुछ अच्छी decisions ले पाएंगे। Today we just go ahead with our life most of the time because we are not aware of it. Awareness आएगा तो कुछ डिसीजंस में बदलाव आएगा, तो हम कुछ एक्शंस लेंगे, और अगर कुछ एक्शंस लेंगे तो बट ऑब्वियसली हमें रिजल्ट्स तो मिलने वाले हैं। सो प्लीज हेल्प मी इन दिस मिशन बाय स्प्रेडिंग द वर्ड ऑफ माउथ and subscribing to my channel, and liking it, commenting it, give me your feedbacks and I will be happy to improvise. मैं भी आपके साथ सीख रहा हूँ, और this is what I wish to do throughout the day and week and months and my life, helping lots of you people to get the basic knowledge about good health, weight loss, fat loss, exercise, nutritional awareness month ही हम celebrate कर रहे हैं। So a very super short video again. Thank you very much for watching, and thank you for staying till this end. We will come to you tomorrow with vitamin K. That is also more important. And tomorrow we will finish fat soluble, and then we will start moving into water soluble. So thank you very much, guys. See you tomorrow. पुनः में तो कोरोना का कहर बढ़ रहा है, so make sure that you stay home, stay safe, but stay fit. Thank you. Bye bye. See you tomorrow.